Myself, Dr. Fatima Yasmin, lecturer, Electrical Engineering Department, HEVET, Polytechnic, Lucknow. In this video, I am going to deliver a lecture on Kirchhoff's laws. This topic is taken from Basic Electrical Engineering, which is a second semester subject of diploma course. These laws are basic but at the same time extremely important because they are applicable to almost all the subjects of electrical engineering. When we talk about the voltage across or the current through any element, we can apply these laws to find out the voltage and current. There are two types of Kirchhoff's laws. First is the KVL or Kirchhoff's voltage law, also known as the loop law or mesh law. And the another is the KCL, Kirchhoff's current law, also known as the junction law. Voltage law states that the algebraic sum of all the voltages in any closed path at any instant is 0. Mathematically, summation Vt closed path is equal to 0. कहना क्या चाह रहे हैं कि किसी भी क्लोज्ड पाथ में एल्जेब्राइक सम सारी वोल्टेजेस का किसी भी इंस्टेंट पे 0 होगा. सपोज दिस इज अ क्लोज्ड पाथ. अगर हम इन सारी वोल्टेजेस का सम करें किसी भी इंस्टेंट पे तो इट शुड बी 0. दिस statement is given by Kirchhoff as a Kirchhoff's voltage law. Okay, so before applying to Kirchhoff's voltage law to any circuit, sign convention समझ लेते हैं कि sign convention हमको क्या consider करना है. Suppose this is a voltage source. Bigger line indicates the positive terminal of the voltage source and the smaller line indicates the negative terminal of the voltage source. So, when we are moving from positive terminal to negative terminal, there is a fall in voltage. हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, फॉल इन वोल्टेज होगा और फॉल इन वोल्टेज को हम दिखाएंगे नेगेटिव साइन से. तो जब हम केवीएल इक्वेशन लिखेंगे तो हम माइनस साइन लगाएंगे. वोल्टेज जो भी वैल्यू होगी, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज सोर्स, से Vs हियर, सो माइनस Vs. जब हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो हम लिखेंगे माइनस Vs. ऑन द अदर हैंड, जब हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, राइज इन वोल्टेज होगा. हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, हम लोअर साइड से हायर साइड की तरफ जा रहे हैं तो राइज इन वोल्टेज होगा. राइज इन वोल्टेज को हम लिखेंगे पॉजिटिव Vs. इसी तरह से जब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की तो रेजिस्टेंस में सपोज दिस इज वन रेजिस्टेंस एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज मार्क्ड इन द रेजिस्टिव ब्रांच दैट इज फ्रॉम A to B और वैल्यू क्या है करंट की, I है. व्हेन वी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में करंट है. वी टेक नेगेटिव साइन and minus IR. Okay, and the second case is we are moving opposite to the direction of current. ये करंट की डायरेक्शन है, करंट is flowing from A to B and we are moving from B to A. Now in this case we take positive sign, positive IR. तो ये साइन कन्वेंशन है. जब हम केवीएल किसी सर्किट में अप्लाई करेंगे तो ये साइन कन्वेंशन हमको फॉलो करना है. ओके, सो आई रिपीट, KVL
is the algebraic sum of all voltages around a closed path and any instant is 0. Closed path से आप क्या समझते हैं? Closed path, it is a, when we suppose if we label this, अगर हमने इसको लेबल कर लिया A, B, C, D, E and F. Okay? So closed path क्या होगा? A, B, C, D, E, F and A. मतलब जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पर आके हमको फिनिश करना है, तो ये क्लोज पाथ हो गया। अब इस क्लोज पाथ में दो टर्म आती है, वन इज मैश एंड द अनदर इज लूप। मैश की हम बात करें, मैश इज अ single closed path, it does not contain any other closed path within it. कहने का मतलब है कि मैश जो है वो उसके अंदर कोई दूसरा क्लोज पाथ नहीं होगा, और लूप उसको कहते हैं जो कि जिसमें विच कंटेन्स अनदर लूप विद इन इट, जिसके अंदर हम दूसरा भी क्लोज पाथ हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम इस सर्किट की बात करें तो इसमें मैश कितने हैं? दो मैश हैं, ए बी ई एफ ए, A, B, E, F, A, one mesh, and the another mesh is B, C, D, E, B. I repeat, B, C, D, E, B. This is another mesh. Okay, loop कितने होंगे इसमें? इसमें loop होंगे A, B, C, D, E, F, A, and A, B, ये तो एक बिगर लूप हो गया, A, B, C, D, E, F, A, और दूसरा लूप क्या होगा? A, B, E, F, A. Mesh is also a loop. Another loop is B, C, D, E, B. Okay, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 3 लूप हो जाएंगे, लूप 3 and mesh 2. ठीक है, क्लियर? मैश के अंदर दूसरा कोई क्लोज पाथ नहीं होता, लूप के अंदर दूसरा भी क्लोज पाथ हो सकता है। लूप कैन कंटेन, लूप में और मे नॉट कंटेन अनदर लूप विद इन इट, बट मैश में के अंदर कोई क्लोज पाथ नहीं होता। इज दैट क्लियर? सपोज करिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, डिटरमिन करंट इन ऑल रेजिस्टेंसेस बाय अप्लाइंग केवीएल इन दिस सर्किट। तो केवीएल अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले मैश देखते हैं कि हाउ मैनी मैशेस आर गिवन इन द सर्किट, कितनी मैशेस हमारे सर्किट में दी हुई हैं। जैसा कि अभी हम बात कर चुके हैं कि इस सर्किट में 2 मैश हैं। फर्स्ट मैश इज ए बी E, F, A, okay, and mesh 2 है B, C, D, E, B। ठीक है, हमने देख लिया कि 2 मैशेस हैं सर्किट में। नाउ द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू अज्यूम सम करंट इन ऑल द मैशेस। तो 2 मैश है हमारे पास, हमने उन दोनों मैशेस में करंट अज्यूम कर ली। से I1 करंट इज फ्लोइंग इन दिस मैश एंड I2 करंट इज फ्लोइंग इन दिस मैश। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज टू अज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमने अज्यूम कर ली कि I1 करंट क्लॉकवाइज घूम रही है और I2 करंट भी क्लॉकवाइज घूम रही है। एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम करंट की डायरेक्शन अज्यूम करते हैं तो हम सेम करंट की डायरेक्शन लेते हैं सारे मैशेस में, आइदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो आप क्लॉकवाइज सारे मैश में लगाएंगे, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो आप सारे मैशेस में एंटी क्लॉकवाइज करंट अज्यूम करेंगे। ओके, अब हमने करंट की वैल्यू अज्यूम कर ली, हमने करंट की डायरेक्शन अज्यूम कर ली। अब हम केवीएल अप्लाई करेंगे। अप्लाई
KVL in mesh 1. mesh 1 में KVL अप्लाई करने के लिए हम किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सपोज हमने 20 वोल्ट से इस सोर्स से स्टार्ट कर रहे हैं, ई पॉइंट, सपोज करिए F पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमने देखा यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज अगर हमने अज्यूम की है तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है एंड वी आर आल्सो मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। हमने यहाँ पर ब्रांचेस में करंट की डायरेक्शन अज्यूम नहीं की है, हमने किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट मार्क नहीं की कि इस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट ऐसे जा रही है, फ्रॉम F to A जा रही है या A to B जा रही है या B to A जा रही है। हमने ब्रांचेस में करंट मार्क नहीं की, हमने मैश के अंदर करंट की डायरेक्शन मार्क की है और अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जा रहे हैं और हम यहाँ देखेंगे कि हम निगेटिव पोलैरिटी से पॉजिटिव पोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं और वोल्टेज की वैल्यू है 20, सो वी राइट +20 हियर, ठीक है, +20 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम और आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। 2 ओम के रेजिस्टेंस में वी आर मूविंग विद द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। सो पुट नेगेटिव साइन -2 एंड द डायरेक्ट करंट इज I1। 2 वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हो गई, 2 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है और I1 इसमें करंट फ्लो कर रही है तो -2I1। अब हम यहाँ से यहाँ आ गए, देखा एक और 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये 4 ओम का रेजिस्टेंस दो मैश के बीच में कॉमन है। ये रेजिस्टेंस आपका मैश 1 में भी काउंट होगा और ये रेजिस्टेंस आपका मैश 2 में भी काउंट होगा। इसके अंदर डिफरेंस करंट फ्लो करेगी, ओके। सो माइनस साइन for voltage drop and the value of resistance is 4, so put 4 here. Now जब जिस मैश के लिए हम करंट इक्वेशन लिख रहे हैं उस मैश की करंट को अपर हैंड पे रख के दूसरी मैश करंट को हम माइनस कर देंगे, I1 -I2, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब कोई रेजिस्टेंस कॉमन है दो मैशेस के बीच में तो उसमें डिफरेंस करंट जाएगी और डिफरेंस करंट हम कैसे लेंगे, वेदर इट इज I1 -I2 और I2 -I1। तो इसके लिए हम ये देखेंगे, बिकॉज हमने यहाँ पे ब्रांच में करंट मार्क नहीं की है, हमने मैशेस में करंट मार्क की है, तो हमने माइनस साइन लगा दिया फॉर ड्रॉप इन वोल्टेज एंड 4 ओम 4 इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो जिस मैश के लिए हम इक्वेशन लिख रहे होंगे उस मैश करंट को अपर हैंड पे रख के दूसरी मैश करंट को हम माइनस कर देंगे, I1 -I2। और फिर हम आते हैं इस वोल्टेज सोर्स की तरफ जो कि 24 वोल्ट का है और हम उसके नेगेटिव पोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे माइनस साइन, 24 इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सोर्स एंड दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब ये सर्किट क्लोज हो गया और कोई चीज इसमें कनेक्टेड नहीं है, ठीक। तो ये केवीएल इक्वेशन हो गई हमारी मैश 1 के लिए। मैं रिपीट करती हूँ, +20 क्योंकि हम नेगेटिव पोलैरिटी से पॉजिटिव पोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं, माइनस साइन फॉर वोल्टेज ड्रॉप हियर, हम इस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, -2I1 करंट हमने इसमें अज्यूम की है तो -2I1। ये 4 ओम का रेजिस्टेंस इन दोनों मैशेस के बीच में कॉमन है तो -4I1 -I2 और फिर हम वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो -24 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ओके। अब हम दूसरी मैश के लिए इक्वेशन लिखेंगे, अप्लाई केवीएल फॉर मैश 2। यहां से स्टार्ट करते हैं
देखते हैं कि हम पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं वोल्टेज सोर्स के, प्लस 24 वैल्यू है उस वोल्टेज सोर्स की। फिर हमारा 4 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, अगेन पुट माइनस साइन। नाउ द करंट इज I2 माइनस I1। क्यों? क्योंकि अब हम इक्वेशन मैश 2 के लिए रख रहे हैं, तो उसकी मैश 2 की करंट को अपर साइड पे रख के दूसरी मैश करंट को हम माइनस कर देंगे। ठीक है। नाउ इफ यू मूव फॉरवर्ड, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, -6, and the value of current is I2 here, so I2 and this is equal to 0. Okay. अब इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। +20 माइनस 2I1 माइनस 4I1 प्लस 4I2, ब्रैकेट ओपन कर लिया हमने, -24 इज इक्वल टू 0 and this is equal to -6I1 plus 4I2 -4, 24, इसको माइनस कर दिया, -24 plus 20, this is equal to 0. So this is equation number 1 and इसको सॉल्व करते हैं तो +24 माइनस 4I2 plus 4I1 minus 6I2 and this is equal to 0. फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। 4I1 minus 10I2 is equal to -24, sorry, is equal to -24. Okay, this is equation number 2. जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो हमें I1 और I2 की वैल्यू मिल जाएगी। I1 और I2 की वैल्यू हमको ये पता चल जाएगी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। तो I1 करंट फ्लो कर रहा है 2 ओम में और I2 करंट फ्लो कर रहा है 6 ओम में, और 4 ओम में डिफरेंस करंट जा रहा है I1 माइनस I2। तो हम इन तीनों रेजिस्टेंस की करंट पता चल जाएगी। -6I1 plus 4I2 is equal to 4. This is equation 1. And 4I1 minus 10I2 is equal to -24. Equation 2. On solving these two equations, we have I1 is equal to 1.25 ampere and I2 is equal to 2.90 ampere. ये हमारी आ गई। डिफरेंस करंट I1 minus I2 is equal to I minus 1.65 ampere. ठीक है। अगर हम इस सर्किट में देखें, I1 हमारी ये डायरेक्शन थी, बैटरी सोर्स के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन यही होनी चाहिए, हमारी पॉजिटिव आई। ठीक है, प्लस 1.25 एम्पियर आ गई। इसी तरह अगर हम बैटरी सोर्स कंसीडर करें, हमने अभी बैटरी सोर्स जो है वो कंसीडर नहीं किए थे, जस्ट हमने एज्यूम कर लिया था कि I1 करंट की डायरेक्शन ये है और I2 करंट की डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब अगर हम अपने आंसर्स को वेरीफाई करें या डायरेक्शंस को वेरीफाई करें, तो हम देखते हैं कि I1 की वैल्यू पॉजिटिव आई और ये पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, I2 की वैल्यू, या पहले बात कर लेते हैं I1 माइनस I2 इज इक्वल टू -1.65 आई। अगर हम इस बैटरी सोर्स को कंसीडर करें तो डायरेक्शन ऑफ करंट शुड बी लाइक दिस, अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, बिकॉज करंट की डायरेक्शन इनसाइड द वोल्टेज सोर्स के इनसाइड द बैटरी नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है और आउटसाइड द बैटरी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन ये होनी चाहिए और हमने मानी क्या थी, ये डायरेक्शन मानी थी I1 माइनस I2। तो हमारा नेगेटिव आंसर आ गया -1.65 एम्पियर। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो डायरेक्शन हमने एज्यूम की थी करंट की, एक्चुअली करंट उस डायरेक्शन में नहीं फ्लो कर रहा है। The direction of current is opposite to the assumed direction. ठीक, तो सिर्फ नेगेटिव साइन अगर आता है हमारे आंसर में, किसी भी आंसर में, तो उसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन हम लेके चले थे, जो डायरेक्शन हमने अज्यूम की थी, वो एक्चुअली में करंट उसके अपोजिट फ्लो करेगा या कर रहा है। ठीक है, तो ये माइनस साइन सिर्फ ये दिखाता है। और I2 की वैल्यू, अब यहाँ से करंट इधर गई, यहाँ से करंट भी ऊपर गई, यहाँ आके I1 प्लस I2 जो है वो सम अप I1
ये करंट प्लस दिस करंट ये सम अप होके I2 में फ्लो करेगी और I2 की डायरेक्शन यही होगी, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर पॉजिटिव आया है। ओके, सो दिस इज अबाउट KVL. Now we will discuss the another law, Kirchhoff's current law states that at any instant algebraic sum of currents at a junction is 0. Mathematically we can write it as at any junction and IT is equal to 0, summation of all the current is equal to 0. Now let us assume one junction, that is this is junction N and these are the currents. So as we have seen that I1, I2 and I6 are the incoming currents, whereas I3, I4 and I5 are the outgoing currents from this junction. So as in the KVL we have assumed certain sign convention, in this KCL में भी हम sign convention मानेंगे। जो incoming currents हैं, जो नोड की तरफ करंट आ रही है, उनको हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये क्या कर रही है, ये इनकमिंग करंट इस नोड का पोटेंशियल राइज कर रही है, पोटेंशियल बढ़ा रही है। ठीक है, तो राइज इन पोटेंशियल इज इंडिकेटेड बाय पॉजिटिव साइन और ऑल द आउटगोइंग करंट्स is indicated by negative sign, क्योंकि ये करंट नोड से जा रही है तो ये इसका पोटेंशियल, इस जंक्शन के पोटेंशियल को कम कर रही है, तो आउटगोइंग करंट को हम नेगेटिव साइन से दिखाएंगे। नाउ वी अप्लाई दिस KCL एट दिस जंक्शन, सो I1 is the incoming current plus I1 plus I2, I2 is also an incoming current, it is going towards the junction, जंक्शन की तरफ जा रही है। Then I3 जंक्शन को लीव कर रही है, so minus I3, I4 भी जंक्शन से जा रही है away from the junction, minus I4 and I5 is also leaving the junction, ये भी लीव कर रही है, then minus I5 and I6 is going towards the junction, ये I6 जंक्शन की तरफ जा रही है, तो इसको हम पॉजिटिव साइन से लिखेंगे प्लस I6 and this is equal to 0. KCL कहता है algebraic sum of all the currents at a junction is 0. So this is equal to 0. Now we can write this equation as I1 plus I2 plus I6 and this is equal to I1 plus I2 plus I6 and this is equal to I3 plus I4 plus I5. ओके, हमने ये नेगेटिव साइन को इधर ले गए, राइट हैंड साइड पे ले गए, तो अब क्या हो गया, I1 plus I2 plus I6 is equal to I3 plus I4 plus I5. I1, I2, I6 क्या है, इनकमिंग करंट है, I1, I2 and I6 are all incoming current and I3, I4, I5, I3, I4, I5 सारी outgoing current है। तो in other words we can say the Kirchhoff's current law states that sum of all incoming currents must be equal to sum of all outgoing current. क्लियर, क्या कह रहे हैं कि सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट, जितनी भी नोड जंक्शन की तरफ करंट आ रही है उनका सम बराबर होना चाहिए जितनी करंट जंक्शन से जा रही है। ठीक है, सो दिस इज द KCL. नाउ वी अप्लाई दिस KCL टू द सर्किट। तो KCL अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या मेथड्स होंगे, क्या हमको असम्पशंस लेने हैं, वो हम देख लेते हैं। नाउ KCL talks about the word junction and one more word
you have heard, that is node. एक नोड होता है और एक जंक्शन होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? नोड इज एनी पॉइंट इन द सर्किट वेयर 2 और मोर देन 2 ब्रांचेस मीट। ठीक है, वो पॉइंट जहां 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस आपकी मीट कर रही हैं, उनको हम कहते हैं नोड। एंड जंक्शन इज दैट पॉइंट इन द सर्किट वेयर 3 और मोर देन 3 ब्रांचेस कैन मीट। ठीक है, जहां पे जिस पॉइंट पे 3 या 3 से ज्यादा ब्रांच मिल रही है, उस पॉइंट को कहते हैं जंक्शन। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप to solve the circuit is to identify the junction. Identify the junction in the given circuit. The second step, और इसको हम principal junction भी कहते हैं. The second step is to assume certain voltage. Assume certain voltage at these junction. कोई एक वोल्टेज हम अज्यूम कर लेंगे। सबसे पहले हम जंक्शन आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन सर्किट में हमारे कितने जंक्शन हैं। उसके बाद हम एक वोल्टेज उस पे अज्यूम कर लेंगे कि इन जंक्शंस पे ये वोल्टेज जैसे VA, VB, VC और V1, V2, V3 व्हाटएवर इट इज, जो आपको चाहिए वो आप अज्यूम कर लीजिए। ठीक है। नंबर थर्ड, these are the reference node. All the lower nodes are considered as the reference junction. ये क्या है? ये if we look at this circuit, तो ये सब क्या है? ये एक्चुअली एक ही जंक्शन है। ठीक है, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं कनेक्टेड है, ये एक ही जंक्शन पॉइंट है। इसको हम रेफरेंस नोड मान लेते हैं और इसके पोटेंशियल को हम अज्यूम कर लेते हैं जीरो पोटेंशियल। इसको मान लेते हैं कि दिस इज रेफरेंस नोड और जंक्शन V0 एंड द पोटेंशियल इज जीरो। ग्राउंडेड कर देते हैं रेफरेंस जंक्शन को और उसका पोटेंशियल हम मान लेते हैं 0 वोल्ट। ठीक है, बिकॉज इफ वी कंसीडर सम अदर वोल्टेज, अगर हम यहाँ पे कुछ और वोल्टेज कंसीडर करते हैं तो फिर हमको उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ VA वोल्टेज मानी तो VA कैलकुलेट करने के बाद हमको इस पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसका पोटेंशियल 0 मान लेते हैं ताकि हमको फर्दर कोई कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ठीक है, उसके बाद टेक रेफरेंस जंक्शन पोटेंशियल एट 0 वोल्ट। ठीक है, हम उसको 0 वोल्ट मान लेते हैं। ओके, equal to 0 volt. Okay. Now distribute the current and then distribute the current in all branches of the circuit. देखिए, हमने वहां बात की थी KVL में कि हम करंट अज्यूम करेंगे मैश में। यहाँ हम ब्रांच में करंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इट इज इजी कि हम कोई भी एक सोर्स कंसीडर करके पूरे सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दें उस सोर्स के रेफरेंस में। सारे सोर्सेज को अगर हम कंसीडर करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इधर से करंट इधर चल रही है या और कोई सोर्स अगर लगा हुआ है किसी सर्किट में तो उससे करंट इधर निकलनी चाहिए, वो आप उसको इग्नोर कर दें बाकी सोर्सेज को। कोई भी एक सोर्स कंसीडर करके उसके बेसिस पे पूरे सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप इज टू डिस्ट्रीब्यूट द करंट इन ऑल ब्रांचेस एंड द नेक्स्ट स्टेप अप्लाई KCL एट द जंक्शंस। ठीक है, KCL अप्लाई करेंगे जंक्शन पॉइंट पे, फिर हमारी इक्वेशन बनेगी एंड देन बाय सॉल्विंग दीज इक्वेशंस वी कैन डिटरमिन द करंट थ्रू एनी ब्रांच और द वोल्टेज एट द जंक्शन पॉइंट्स। ओके, नाउ वी अप्लाई दिस
all these steps to circuit. The question is, determine the current through 1 ohm resistance by using KCL. This is the given circuit. Here is 1 ohm resistance. Now we have to apply KCL in this circuit and find out the current through 1 ohm resistance. Now the very first step is to identify the junction. Junction क्या है? Junction where 3 or more than 3 branches meet. So this is 1, 2, 3. This is one junction, say A, and this is another junction, say B. This is not a junction, and this is also not a junction. Okay? So now the next step is to assume some voltage at the junction. Say VA is voltage at junction A and VB is the voltage at junction B. Okay, here the voltage is VA and here the voltage is VB. Then the next step is to grounded the reference junction. So we have already grounded this रेफरेंस जंक्शन को हमने ग्राउंड कर दिया, उसके पोटेंशियल को हमने कह दिया 0 वोल्ट. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिस्ट्रीब्यूट द करंट इन द सर्किट बाय कंसीडरिंग वन सोर्स. ओके, सो वी कंसीडर दिस 8 वोल्ट सोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज I1. ठीक है, यहाँ से I1 चली, यहाँ I और यहाँ से I1 को दो पाथ मिल रहे हैं, एक ये और एक ये. यहाँ पे करंट क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी. दिस इज से I2 करंट इधर गई और I3 करंट इधर गई. ओके, फिर ये I3 करंट यहाँ पर आके फर्दर डिवाइड हो जाएगी. से I4 करंट इधर गई और I5 करंट इधर चली. ठीक है, क्या किया हमने? इस सोर्स को कंसीडर करके करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सर्किट में. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई KCL. KCL अप्लाई करते हैं. अप्लाइंग KCL एट जंक्शन A. So the sum of incoming current is equal to the sum of outgoing current. KCL यही कहता है. इनकमिंग करंट क्या है इस जंक्शन पे? एक है, दिस इज I1. जैसे कि आप देख रहे हैं, आउटगोइंग करंट क्या है? I2 एंड I3. ठीक है, इस जंक्शन ए पे I1 इनकमिंग करंट है और I2 एंड I3 आउटगोइंग करंट है. तो हमने ये लिख दिया सम ऑफ इनकमिंग करंट, ओनली वन इनकमिंग करंट I1 एंड दिस इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट. तो टू आउटगोइंग करंट्स आ गया, I2 प्लस I3. ठीक है, नाउ बाय ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है I इज इक्वल टू V बाय R. तो ये I1, I2, I3 हमको निकालना है, तो हम इसको इन द फॉर्म ऑफ V बाय R लिखते हैं. अब इसको लिखने के लिए I1 करंट को V बाय R के उसमें लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ देखेंगे कि यहाँ से करंट I1 चल रही है और जैसे कि हमने KVL में बताया था, when we are moving towards negative potential to positive potential of the voltage source, we consider the positive sign because of rise in voltage. तो यहाँ पे I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 और प्लस 8. ठीक है, माइनस कहाँ तक है I1? यहाँ तक है. यहाँ पोटेंशियल क्या है? VA. तो 8 माइनस VA, पोटेंशियल डिफरेंस इज 8 माइनस VA. और R की वैल्यू क्या है? R की वैल्यू है 2. ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ V बाय R हो गया. पोटेंशियल डिफरेंस इज, ये एक बैटरी लगी है, एक वोल्टेज सोर्स लगा है एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स. तो प्लस 8 माइनस VA अपॉन 2. ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 8 माइनस VA अपॉन 2.
नाउ I2 की बात करें, I2 करंट हमारा इस डायरेक्शन में है, तो VA माइनस 0, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं कि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है, तो दिस इज एट हायर पोटेंशियल, यहां से चल रही है और लोअर की तरफ जा रही है, तो VA माइनस 0, V0 लिखेंगे या V0 इज इक्वल टू 0, तो हमने 0 लिख दिया अपॉन 4, ओके, प्लस I3। अगेन करंट VA से VB की तरफ जा रही है, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB अपॉन 2, ठीक है। अब ये हमने V बाय R की फॉर्म में I1, I2 और I3 की वैल्यूज को लिख लिया, ठीक है। नाउ सॉल्व करते हैं इसको। 8 माइनस VA अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू, एलसीएम लिया, एलसीएम इज 4, VA, just write VA, no need to write 0 again and again, plus 2VA minus 2VB upon 4, okay। Now take this 4 here, so 4 upon 2, 8 minus VA, and this is equal to 3VA minus 2VB, okay। Now this is equal to 16 minus 2VA is equal to 3VA minus 2VB. By solving further, we have 5VA minus 2VB is equal to 16. This is equation number 1. 5VA minus 2VB, this becomes 3 plus 2, 5 minus 2VB is equal to 16. This is equation 1. Now applying KCL at node B. जितने भी नोड्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, सारे नोड्स पे हम KCL अप्लाई करेंगे। नोड B पे KCL अप्लाई करेंगे, तो इनकमिंग करंट नोड B पे क्या है, I3 है, और आउटगोइंग करंट नोड B पे है I4 प्लस I5, ठीक है। अब I3 की वैल्यू क्या होगी, अगेन VA माइनस VB अपॉन 2, I4 की वैल्यू होगी VB, एक वोल्टेज सोर्स आ रहा है हमारा, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स, हम नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो ये -4 हो जाएगा, एंड -0 अपॉन 2। 0 मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, लेकिन 0 लिखने की जरूरत नहीं है इक्वेशन में, ओके। प्लस I5 इज इक्वल टू VB माइनस 0 अपॉन 1, VB माइनस 0 अपॉन 1, okay। now solving this equation, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी VA, इसको सॉल्व किया तो ये हो गई VA माइनस VB अपॉन 2, एंड दिस इज इक्वल टू VB माइनस 4 प्लस 2VB अपॉन 2, एलसीएम ले लिया हमने इस साइड का, और यह इक्वेशन मिल गई आपको। टू से 2 कैंसिल आउट हो गया, VA 3VB माइनस VB माइनस 2VB इज इक्वल टू -4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सॉरी 4VB, ये दोनों माइनस हो जाएगा इधर जाके, तो दिस इज 4VB इज इक्वल टू -4। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो वी गेट VB इज इक्वल टू
और I1 हमसे पूछा है I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। V भी आपका 2 वोल्ट आ जाएगा और इससे आपकी I1 की वैल्यू 2 एम्पियर आ जाएगी। सो इन दिस वे वी कैन अप्लाई KCL to the circuit.